Hello students, today we will study about the fundamental unit of life, that is cell. You can see two diagrams on the screen. One is of animal cell and this is second one is plant cell. First we will study about what is the difference between plant cell and animal cell. Plant cell and animal cell have plant cell is usually larger in size and animal cell is comparatively smaller in size. And plant cell have rigid cellulose cell wall in addition to plasma membrane, while the animal cell is having a flexible plasma membrane only. Plant cell cannot change its shape. Animal cell can often change its shape. In plant cell, chloroplast, that is plastids, are present, and in animal cell, plastids are not present. Mature plant cell contains large vacuole, okay, and in animal cell often possesses many small vacuoles only. Nucleus lies in the plant cell. We can see the nucleus is lying in a corner, peripheral cytoplasm, in the peripheral of cytoplasm, and in the animal cell nucleus lies in the center, always in the center. In the plant cell, lysosomes are rare, and in animal cell they are present prominently. Okay. Plasmodesmata in plant cell is present and in animal they are absent. Now प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? हम न्यूक्लियस सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल और साइटोप्लाज्म तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. Plasma membrane जो है वो सेल के अंदर से और बाहर की तरफ सब्सटेंसेस को जाने के लिए अलाउ करती है और बाहर से आने वाले फॉरेन सब्सटेंसेस को, जिसमें गैसेज होती हैं, वाटर होते हैं, उनको अपने अंदर सेल के अंदर अलाउ करती है. बट वह सेलेक्ट करती है कि व्हाट टाइप ऑफ गैसेज एंड विच टाइप ऑफ लिक्विड शुड बी कम इनसाइड द सेल एंड विच शुड गो आउटसाइड. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड selectively permeable membrane. The cell membrane is called selectively permeable because it allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. Now, some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. Yes, students, we know the process diffusion. Diffusion is a process in which movement of substances takes place from higher concentration to lower concentration. Similarly, water also obey the rule of diffusion, but that is when water moves from higher concentration to lower concentration, the process is called osmosis. ठीक है. यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल के अंदर अधिक हो जाती है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बाहर से ऑक्सीजन एंटर करती है सेल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर जाती है. तो ये किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा. ओके. नाउ cell wall. What is cell wall? Cell wall is a rigid, hard and permeable covering found outside the cell membrane in plant cell only. It is made up of cellulose and fungus is made up of chitin. Okay. Function of cell wall क्या है? Cell wall के function, it provides structural strength, shape and mechanical strength to plant. प्रोटेक्शन ऑफ मैकेनिकल इंजरीज. आपने देखा है कि प्लांट कैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वो खड़े रहते हैं, मजबूत होते हैं. वो किस वजह से होते हैं? उस सेल, क्योंकि उनकी बाहरी जो कवरिंग होती है सेल वाल बहुत रिजिड होती है, ये बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उनको. और प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं इसमें, जो कि स्मॉल पोर्स होते हैं और विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ सम मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट सेल. एडजेसेंट सेल मतलब दो आपस में जो सेल है उनके बीच में जो लेन देन होगा गैसेस का, वाटर का, उनको वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होता है. हमने जो पहले पढ़ा है इसमें देखते हैं अपन इसमें स्ट्रक्चर ऑफ में ये जो है आप देख रहे हैं एडजेसेंट, वहाँ पे सेल दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ भी एक सेल था, यहाँ भी एक सेल है. तो इनके बीच में जो ये आप पोर्स देख रहे हैं ये क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा है. इन्हीं के थ्रू, अब ये भी तो एक सेल ही है, सेल के पास क्या होगा? दूसरा सेल, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्लांट. तो ये जो सेल है इस सेल से इस सेल में ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? ये जो आप देख रहे हैं ये
रास्ते जैसे पाइप जैसे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ nucleus. What is nucleus? Nucleus is a spherical or oval in shape and it is having nucleolus. उसमें एक न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दो ये जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो ये जगह है, गैप है, ये न्यूक्लियर पोर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर पोर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स है उनका ट्रांसफर में हेल्प करता है। ओके, न्यूक्लियो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन। इट ट्रांसमिट हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। Cytoplasm. What is cytoplasm? It is a fluid. Now cytoplasm. Cytoplasm जो न्यूक्लियस के बाहर जो भी मटेरियल होता है जिसमें सभी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म होता है। इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म होता है। It contains cell organelles and stores a number of important molecules such as glucose, amino acid, enzymes and vitamins. Okay, now you can see what are cell organelles and what is cytoplasm. ये जो न्यूक्लियस है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, the material in between these two, this is cytoplasm. All cytoplasm including it have these cell organelles. अलग अलग cell organelles है, vacuole भी एक cell organelle है. So now first we will study cell organelle. उसमें हम पढ़ते हैं लाइजोसोम क्या होते हैं. What are lysosomes? मेम्ब्रेन, लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम. ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए सैक होते हैं, पैकेट्स होते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी अब आगे हम पढ़ेंगे उसके द्वारा बनाए जाते हैं. दीज आर काइंड ऑफ डिस्पोजल सिस्टम. ये क्या है? डिस्पोजल सिस्टम के होते हैं जिसमें दीज हेल्प इन रिमूविंग एनी डेड और ओल्ड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स. नए और पुराने जो सेल हैं, जो मर गए हैं, जो डेड हो गए हैं, कट फट गए हैं एक्टिविटीज़ से, उनको हटाकर ये न्यू सेल्स के लिए जगह बनाता है. लाइजोसोम रिलीज पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और वायरस विच एंटर इनटू द सेल. कोई फ्रॉम whenever any foreign material like bacteria or virus which enter into the cell, the lysosome found that they are harmful for the body or cell, they secretes a digestive enzyme which destroy these foreign material. These are also called suicidal bag of cell. When the cell get damaged, lysosome may burst and release the powerful digestive enzyme which digest their own cell. So these are also called सुसाइड बैग्स ऑफ सेल. जब भी कुछ हार्मफुल एक्टिविटी होती है और लाइजोसोम जो है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए सेल की. डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं पावरफुल, जो कि इनके खुद को ही ख़त्म कर देते हैं, खुद को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं. लाइजोसोम खुद को ही मार देता है, जिसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहलाता है. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल. ऑल आर इंपॉर्टेंट बट माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल. कैसी होती है ये? इट इज़ रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, टू मेम्ब्रेन कवरिंग. अभी देखेंगे हम इसका डायग्राम. एंड आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक क्रिस्टे. दीज फोल्ड्स क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. और हमने पढ़ा कि डबल फोल्ड, ये एक फोल्डिंग है, और जो है ये भी ऐसी शेप की ही है, फिर पर ऐसा शेप इसकी जो ये बाउंड्री है ऐसी ना होकर फिर उन्होंने ऐसे फोल्ड्स ले लिए जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए. इनर, ये दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है इनको क्रिस्टे कहते हैं, और इसके अंदर दिस इज मैट्रिक्स. ओके,
Now function of mitochondria. Mitochondria is known as powerhouse of cell. The energy required for various chemical activity needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules. ATP molecules की रूप में ये एनर्जी रिलीज करती है. ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. सेल के अंदर जो एनर्जी करेंसी के रूप में ये कहलाएगी. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑल्सो बिकॉज इट हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. मीन्स इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन. डीएनए इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है. अगर आप क्वेश्चन आए एमसीक्यू में कि विच ऑर्गेनेल हैव इट्स ओन डीएनए, तो आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubules and sheets. It is continuous between outer nuclear membrane and plasma membrane. It is of two types. There are two types of endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, that is RER, and smooth endoplasmic reticulum, that is SER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम. राइबोसोम जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो इसलिए ही इसे रफ कहते हैं. और इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो डिवाइड ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस. उसकी सरफेस स्मूथ होती है, उसमें कोई राइबोसोम नहीं होते हैं, और उसका प्रोसेस होता है लिपिड सिंथेसिस. यस स्टूडेंट्स, RER प्रोटीन सिंथेसिस, SER लिपिड सिंथेसिस. फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस, RER है तो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, SER डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो भी टॉक्सिफाइड केमिकल्स हैं उनको ये बाहर निकालती है. द लीवर इन लीवर सेल SER हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. ER जो है वो एक चैनल के रूप में काम करती है जो वेरियस रीजन साइटोप्लाज्म के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट का काम करती है. गोल्जी एपरेटस. द मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्ने एंड फर्स्ट डिजाइंड बाय कैमिलो गोल्जी. दिस इज डायग्राम ऑफ गोल्जी. यू कैन सी इट. गोल्जी एपरेटस, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं वेसिकल्स हैं. दीज ऑल आर वेसिकल. और सिस्टर्ने, ये जो फिंगर लाइक है ये क्या कहला रही है, सिस्टर्ने. और इनके बीच का हिस्सा दिस इज ल्यूमन. ओके, so what is its function? It packages material synthesized in ER and dispatches them to intracellular or extracellular targets. Okay, formation of lysosome and peronosomes. Complex sugars are made from single sugar in Golgi apparatus. It helps in storage, modification and packaging of product in vesicles. Plant cell usually have small Golgi complex like dictyosomes. Plastids. Function of Golgi bodies. It helps in formation of lysosome and peronosomes. Complex sugars are made from simple sugar in Golgi apparatus. It helps in storage, modification and packaging of product in vesicle. Plant cell usually have small Golgi complex called dictyosomes. नाउ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये प्लांट्स में होते हैं. दीज कंटेन्स पिगमेंट्स. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इन दिस वी कैन सी स्टोमा. स्टार्च ग्रेन्स होते हैं इसमें, और ये ग्रेनम, थाइलाकॉइड्स, ग्रेनम, दिस इज लेमिना एंड इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन. ईच प्लास्टिड इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा. ठीक है, एंड कंटेन्स अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कॉल्ड ग्रेना, जो कि ईच ग्रेनम एक जो है वो ग्रेनम है और एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, तो स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स. इसमें थाइलाकॉइड्स होते हैं. Function of chloroplast. Function of chloroplast we know it helps in photosynthesis. It help in starch, protein और fat production, जो कि plants में food के जैसे काम में आता है.
राइबोसोम्स आर स्मॉल राउंड बॉडीज कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, उसके ऊपर लगे होते हैं, अटैच होते हैं, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। एंड दीज आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड दीज आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमने देख पढ़ा था ना, आरईआर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। नाउ वैक्यूल्स, फ्लूइड और सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस इन साइटोप्लाज्म is called vacuoles. In animal cells, they are small size, but in plants, their large vacuole is present. Vacuole expel excess water and some waste from cell in unicellular organism. It stores toxic metabolic byproduct of plant cell and provide turgidity and rigidity to the plant cell. Okay, students. Thank you for watching.